Hello everyone. Swastha Raksha Ayurveda Clinic, Panchakarma and Wellness Center, Gulbarga, presenting you Triphala Churna. Myself, Dr. Sabha Taranum, BMS NDRU Gold Medalist, founder of Swastha Raksha Ayurveda Clinic, Panchakarma Center, Gulbarga. For an appointment, you can contact on the number given below. So let us start to the topic Triphala Churna. As we all know, Triphala is a drug widely used in many disorders due to its pharmacological activity. As we are into formula session, so we'll start with simple and yet miraculous effect of Triphala Churna. We all know how much important Triphala Churna is in Ayurveda as it balances three doshas. So it is widely used. But you all know what are the preparation and what did AFI, that is Ayurveda Formulary of India, accepted, and what is the references of that, and what is the proper indication present in the yoga given in AFI. So let us discuss Triphala Churna as per AFI. और ये क्लास सिर्फ BMS स्टूडेंट्स या फिर प्रैक्टिशनर्स के लिए नहीं है, ये बस लेमैन के लिए भी है. लेमैन के लिए मैं लास्ट में वीडियो के एंड में आपके लिए फ्यू पॉइंट्स बोली हूँ त्रिफला के बेनिफिट्स के लिए. व्हेन अ डॉक्टर आयुर्वेदिक स्पेशली इज एडवाइसिंग यू त्रिफला, देन डोंट मिस आउट गाइस. देखिए इसका आप लोग भी लेमैन पर्सन भी देख सकता है ऐसे, लाइक जनरल पब्लिक भी देख सकती है ऐसे. तो वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको त्रिफला के बेनिफिट्स मालूम पड़े. और लेमैन के लास्ट में स्पेशली मैं फ्यू अपने पॉइंट्स बोली हूँ जो अपने पेशेंट्स में देती हूँ, मैं वो बोली हूँ. तो प्लीज आप एंड तक देखिए. And not wasting a single second, we shall move to Triphala Churna mentioned in AFI part 1, 7:15, and the reference taken is Bhava Prakasha Haritakyadiya Varga 41 to 42 shloka. Pathya Vibhita Dhatrinam Falaihi Sya Trifala Samaihi. Pathya here is nothing but Haritaki, synonym of Haritaki. Vibhita is nothing but Vibhitaki. And Dhatrinam is nothing but Amlaki. Falai means Haritaki, Vibhitaki and Amlaki. All these three phalas means fruits are taken. Sya Trifala, all these fruits are taken Samaihi in equal quantity. Phala Trikancha Trifalasa Varacha Prakirtitaha. Also called as Phalatrika in second line, and he says Trifala Vara. Vara means nothing but it is a great medicine. So it is also synonym of Trifala. Cha Prakirtita, it is also known as Phalatrikan, Trifala and Vara. Trifala, Kafapittagni, Meha Kushtahara Sara. In third line, he says that Trifala is nothing but Kafapittagni, that is, it reduces the aggravated Kafapitta. It also balances the Tridosha, but specifically it maintains Kafapitta, aggravated Kafapitta को reduce करने में Trifala का usage है. Then Meha is nothing but it is useful in urinary disorders, that is associated with frequent urination. Either it may be urinary tract infection UTI, or here Meha specifically can be given in diabetes mellitus. Then Kushtahara is nothing but useful in skin disorders. Sara is nothing but enables easy movement of bowel and contents in the body channels. In fourth line, Chakshushya Deepani Ruchya Vishamajora Nashini, which means that Chakshushya, it is good for eyes, and Deepani means kindles digestion strength, Ruchya, useful in anorexia, Vishamajora Nashini, useful in chronic recurrent fever. Acharya Bhava Prakasha, in first line he tells the ingredients and how much quantity should it be taken, that is equal quantity. In second line he tells the synonyms of Trifala, and in third line and fourth line he describes the indication of Trifala Churna. How beautifully we all know that
Triphala is usually given in constipation or anorectal disorders, right? But we never thought that it is beneficial in Chakshushya, Deepani, Ruchya, Vishamajvara Nashini, and we also did not know that it is useful in Kapha Pitta Hara. Various other references you can find 1:2:3 or 1:2:4 kind of ratio of Triphala Churna, but AFI particularly have taken Bhava Prakasha reference for preparation of Triphala Churna, that is in Samaguna quantity 1:1:1 ratio. The image which you are seeing on screen of Triphala Churna is taken from AFI Ayurveda Formulary of India part 1 7:15, wherein he has also mentioned the dose, Anupana, therapeutic indications. In that dose 3:6 gram and Anupana, Ghrita, honey, warm water. As being an Ayurvedic scholar or a practitioner or a student, you should know that Anupana plays a very important role. It acts as a yoga vahi. अगर हमको चक्षुष्य में देना है तो हम त्रिफला को हनी के साथ लेंगे. अगर हमारे को वात के लिए अनुलोमन करना है तो हम इसे वार्म वाटर के साथ देंगे. और हम पित्त को अगर हम कम करना है तो हम इसे घृता के साथ देंगे. आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं तो अनुपाना is very important. You should learn about Anupana. Indications mentioned in AFI are Anaha, distension of abdomen due to obstruction of passage of urine or stool. Prameha, that is urinary disorder. Netra Roga, eye disorder. Kapha Pitta Roga, disease due to Kapha dosha and Pitta dosha. Kushta, skin diseases. Mandagni, impair digestive fire. Aruji, tastelessness. विषमज्वर, that is intermittent fever. अब हम एक स्टूडेंट और प्रैक्टिशनर के हिसाब से हम लोग पढ़ लिए, बट एक लेमैन के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि त्रिफला चूर्णा बहुत सारे डिसीजेस को कम करता है. ये एक मिरेकलस मेडिसिन है आयुर्वेदा की, जो हम पेशेंट्स को हमेशा देते हैं. स्पेशली हम आजकल बहुत सारे पेशेंट्स मेरे क्लिनिक को जो आते हैं, ऑलमोस्ट उसमें अगर 10 पेशेंट्स आ रहे तो उसमें 9 लोगों को कंपल्सरी कॉन्स्टिपेशन रहता ही रहता है. एंड बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन यू गेट मेनी अदर डिसीजेस. मैं स्पेशली मेरे पेशेंट्स विद मधुमेह जो आते हैं, जो डायबिटिक मेलिटस के आते हैं, मैं उन्हें कंपलसरी त्रिफला का यूसेज बताती हूँ, उन्हें मेडिसिन कंपलसरी देती हूँ और मैं उनको एडवाइस करती हूँ कि वो बेटर त्रिफला कषाय से अपनी रोटी बनाएं. जो भी वो रोटी खाते हैं वो राइस को कंपलसरी अवॉइड करें और रात में तो बिल्कुल भी ना लें. तो मैं अपने पेशेंट को बोलती हूँ कि आप त्रिफला को ऐसे इस्तेमाल करो. मैं उन्हें ऐसा नहीं देती कि डायरेक्टली पानी में डाल के पियो या फिर हनी से साथ इस्तेमाल करो. मैं उन्हें बोलती हूँ कि आप जब रोटी बनाते हो तो त्रिफला का कषाय डालो या त्रिफला का पाउडर 1 चमचा डाल के अपने लिए सेपरेटली रोटी बनाओ. एंड यू ऑल डोंट नो हाउ बेनिफिशियल त्रिफला इज. आपका कोलेस्ट्रॉल रेगुलेट करने में त्रिफला हेल्प करता, आपका डायबिटीज जो आपका इंसुलिन रेगुलेट में आपका त्रिफला काम करता. तो त्रिफला एक मिरेकुलस वंडर. तो आजकल कितने सारे लोग चश्मा पहन रहे हैं. पहले सिर्फ ऐसा रहता कि चश्मा बुढ़े हो गए तो आता था, मतलब ये कॉन्सेप्ट था पहले. अभी वैसा ज़माना नहीं है. आजकल इतने छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सबको चश्मा आ रहा है. तो त्रिफला एक वहाँ पे भी एक बेनिफिशियल मेडिसिन है, जहाँ पे आप त्रिफला को हनी के साथ जब इस्तेमाल करते हैं तो वो कफ को रिड्यूस करने में काम करता है. एंड जो बेनिफिशियल होता है चक्षुष्य, जैसे त्रिफला का बेनिफिट जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है श्लोका के अंदर भी उसका इंडिकेशन है चक्षुष्य के अंदर, मतलब आई डिसऑर्डर्स के लिए त्रिफला भी काम करता है. मतलब हमारा जनरल कॉन्सेप्ट क्या था, त्रिफला लेते हैं तो चलो कायम चूर्ण जैसा काम करता है, वो पेट साफ करता है, जमालगोटा जैसा काम करता है. नहीं गाइस, ये त्रिफला एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट योगा है, जहाँ पे हम ओवरऑल बेनिफिट्स देख सकते हैं पूरी बॉडी के अंदर ऊपर से नीचे तक. जो हम चाहते हैं कि कम हो, हमारी बीमारी कम हो, तो त्रिफला एक वंडरफुल मेडिसिन है. इट्स जस्ट नॉट फॉर एनोरेक्टल केसेस और जैसे खाली वो अपना गैस कम करने, ब्लोटिंग कम करने और अपना एक मोशन साफ करने के लिए नहीं होता है, बल्कि आइस के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है. और आपको अगर रिकरेंट फीवर आ रहा है, जो हम लोग टैबलेट लेते हैं पैरासीटामोल और हमारा कम हो जाता है और बाद में से फिर से वो फीवर आ जाती है. एंड यू हैव डन ऑल द टेस्ट, मलेरिया का, डेंगू का, सबका टेस्ट करा चुके हैं और टाइफाइड का टेस्ट कराया. मैं आपको रिपोर्ट नहीं मालूम, मतलब आपको रिपोर्ट तो नॉर्मल आ रहे हैं पर आपको एक्चुअल रीज़न क्या है आपका बार बार लगातार फीवर आने का.
तो एक्चुअली फीवर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है चरका संहिता में। ऑल टेक्स्ट्स एक्चुअली फीवर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो आपको बॉडी में कुछ डिफिशेंसीज हो या फिर कुछ इन्फेक्शन हो या फिर कुछ भी हो, पहला साइन होता है फीवर आ जाती है आपको। तो कभी कभार रिकरेंट फीवर्स हैं जिसके रीजंस नहीं होते, वेरिन यू कैन ऑल्सो यूज त्रिफला देयर विथ वार्म वाटर। और जैसे कि मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया है, मैंने मेरे पेशेंट्स को दिया है ये रिकरेंट फीवर के लिए, मधुमेह मतलब डायबिटीज के लिए, और अनाहा दैट इज जो भी ब्लोटिंग एंड ऑल कॉज करता, कॉन्स्टिपेशन के लिए, एंड एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स जो भी आपके पाइल्स हो फिर फिशर्स हो, इसके लिए सब बेनिफिशियल है। अगर आप एक BMS स्टूडेंट है, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आप सपोर्ट करें, आप शेयर करें, और आप अगर एक प्रैक्टिशनर हैं या PG स्कॉलर हैं तो थैंक यू वेरी मच। और आप कमेंट में बोल सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट क्या होनी है या फिर आपको कुछ एडिशन होना है, डिलीशन होना है, कुछ भी। और अगर आप जनरल पब्लिक है, स्पेशल थैंक यू कि आप इतना पेशेंसली मेरा वीडियो एंड तक देखें। तो त्रिफला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, आपको पता ही चला होगा। और आप आयुर्वेदा की तरफ बढ़ें, उसे प्रोत्साहन दें, उसे सपोर्ट करें। बस इतना ही मैं चाहती हूँ। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन बजाएं। अगर आप गुलबर्गा के रहने वाले हैं तो प्लीज़ विजिट करें, अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें जो नंबर दिया है स्क्रीन पे।